خدا ہے کہ ہم سب اس کی حضوری میں ہیں اور ہم برکت پا رہے ہیں۔ جی آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روحانی مشکلات کا شکار ہے۔ کس چیز کا شکار ہے؟ اونچی آواز میں بولیں۔ روحانی طور پر لوگ مشکلات کا شکار ہیں، اور اس کی جڑ کیا ہے؟ لوگ کیوں روحانی مشکلات کا شکار ہیں؟ آج ہم اس بھید کو سمجھیں گے، اس مکاشفہ کو جانیں گے کہ لوگ کیوں روحانی مشکلات کا شکار ہیں، اس کی جڑ کیا ہے۔ میرے عزیزوں، بہت سے لوگ بڑی بڑی مشکلات میں روحانی طور پر گھرے ہوئے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، وہ اکثر فکر مند رہتے ہیں، وہ اکثر خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ خدا کو محبت کرنے والا باپ اور قادر مطلق خدا کی حیثیت سے نہیں جانتے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے، خدا ہم سے یسوع جیسی محبت رکھتا ہے۔ سب مل کر کہیں، اونچی بات میں ذرا زور سے بولیں۔ خدا ہمارے ساتھ یسوع جیسی محبت رکھتا ہے۔ ایک دوسرے کو بتاؤ، خدا ہم سے یسوع جیسی محبت رکھتا ہے۔ خدا ہمارے ساتھ یسوع جیسی محبت رکھتا ہے۔ اور اسی بات کا لوگ یقین نہیں کرتے، اسی بات پر لوگ شک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ ٹینشنیں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عدم تحفظ کا شکار۔ اگر آپ ان ساری چیزوں سے باہر آنا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنے آپ کو بتائیں، دوسروں کو یہ بات بتائیں اور کہیں کہ خدا ہم سے یسوع جیسی محبت رکھتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، اور یسوع مسیح نے باپ سے دعا یہی کی تھی۔ اگر آپ یوحنا 17 باب اور اس کی 23 آیت کا مطالعہ کریں تو یسوع مسیح کی جو دعا ہے وہ یہی ہے، دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے، جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ غور کریں کہ آج دنیا کیسے جانے گی یسوع مسیح کو، آج دنیا کیسے جانے گی خدا کو؟ میری اور آپ کی وجہ سے۔ آپ اس بات کی گواہی دیں اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اس بات کو ثابت کریں کہ خدا نے جیسی محبت یسوع سے رکھی تھی ویسی ہی محبت ہم سے بھی رکھتا ہے۔ دنیا خدا محبت ہے، دنیا ہمارے اندر جو خدا کی محبت ہے، جب ہم ایک دوسرے سے اس کا اظہار کریں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور کلیسیا کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، غیر قوموں کے ساتھ ہم اپنی اس محبت کا اظہار کریں گے تو پھر لوگ جانیں گے کہ ہم جو ہیں خدا کے لوگ ہیں اور خدا نے ہمیں بھیجا ہے۔ آمین۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ خدا ان سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ وہ یسوع مسیح سے کرتا ہے۔ یہ سچائی آپ کی زندگی میں انقلاب لے کر آ سکتی ہے۔ پریز گاڈ۔ ایک خدا کے خادم کہتے ہیں کہ میری آنکھوں پر پردہ پڑا تھا، میں اس سچائی سے ناواقف تھا اور میری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں تھا، میں بجھا بجھا سا، میں پریشان سا رہتا تھا اپنی خدمت کے حوالہ سے، ہر لحاظ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھیں خدا کی اس پرجلال سچائی پر پڑی، اس پر پڑی، اس آیت پر، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سچائی رکھی ہے، یوحنا 17 باب کی 23 آیت پر، جب اس خدا کے خادم نے
इस आयत को पढ़ा और कहता है कि मेरी आंखें जब इस पुरजलाल सच्चाई की तरफ लगी तो कहता है मेरा नजरिया बदल गया। पहले मेरा नजरिया कुछ और था, लेकिन इसके बाद इस कलाम को पढ़ने के बाद मेरा नजरिया बदल गया। वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी से तमाम बुड़बड़ाहट, गम खत्म हो गए। हालेलुया। कहता मैं बुड़बड़ाता था, मैं तरह तरह की बातें करता था, लेकिन जब मैंने ये आयत पढ़ी कि खुदा ने मेरे में और यीशु में कोई फर्क नहीं रखा, कि जैसी मोहब्बत खुदा यीशु से करता है वैसी मोहब्बत मेरे साथ भी करता है, तो वो कहते हैं कि मेरा रवैया बदल गया। कहता मैं जानता हूं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने इसका तजर्बा किया है, क्योंकि मैं कई साल अदासी और मायूसी के बंधन में जकड़ा रहा। बहुत से लोग आज बड़े बड़े सालों से उदास हैं, मायूस हैं, और ऐसे बंधन में उन्हें जकड़ा हुआ है। और ये खुदा के कानून करने के जब मेरी नजर इस आयत पर पड़ी और जब मुझे समझ आई, जब मैंने इस आयत का यकीन करना शुरू किया कि खुदा मुझसे भी यीशु जैसी मोहब्बत रखता है, तो वो कहते मैं इस मायूसी की जकड़न से आजाद हो गया। हालेलुया। हालेलुया। इसके बगैर हम अजाब, परेशानियों से, अदम तहफ़्फ़ुज़ से, शक से, ज़हनी टेंशनों से आजाद नहीं हो सकते जब तक हम खुदा की मोहब्बत का यकीन नहीं करते और हम नाकाम कोशिशें करते रहे हैं। ठीक है, वो कहता है इससे पहले मैं नाकाम कोशिशें करता रहा, लेकिन जब मुझे ये यकीन हो गया कि खुदा मुझसे यीशु मसीह जैसी मोहब्बत रखता है, तो कहता है मेरे हालात बदल गए, मेरे हालात मुख्तलिफ हो गए। वो कहते हैं कि मुझे समझ आ गई कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात मोहब्बत करने वाले बाप ने ख़त्म कर दी हैं। प्रेज़ गॉड। मेरी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात मेरे खुदा ने ख़त्म कर दी हैं, और अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात आई भी हैं तो वो खुदा की मर्ज़ी से आई, क्योंकि वो कहता है मैं इस बात को जान गया कि खुदा मुझे अपनी आम की पुतली की मानंद मेरा ख्याल रखता है, इसलिए कि मेरी ज़िंदगी में किसी भी किस्म के हालात मुझे बुड़बड़ाने या मायूस होने पर मजबूर नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको पता है कि बनी इसराइल कौम की ज़िंदगी में भी बुड़बड़ाहट आई थी, तो उनको वहीं से वो गुजरे थे बियाबान में। जब बुड़बड़ाहट आई तो वहीं से जलाने वाले सांप निकले और उनको डसने लगे और वो मरने लगे। तो बुड़बड़ाहट को ख़त्म करने के लिए हमने इस बात को समझना है, इस सच्चाई को जानना है कि खुदा हमसे यीशु जैसी मोहब्बत करता है, तो फिर हम मायूस होने पर मजबूर नहीं होंगे, बुड़बड़ाहट नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ हमें मायूस नहीं कर सकती। इसरापुलुस रसूल कैद में रहकर, जहाज टूटने के खतरे में रहकर, 5 दफा कोड़े खाकर वो फिर भी मुतमिन जिंदगी बसर कर रहे थे, इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। वो भी इस राज को समझ चुके थे। आमीन आमीन आमीन। हम अगर गौर करें खुदा के कलाम पर, फिलिपियों 4 बाब की 4 और 11 आयत पर, वो कैद की हालत में है और वो कैदी हैं, फिर भी फिलिपियों की कलीसिया को खत लिख रहे हैं। वो अंदर कैद के अंदर खुश हैं और कलीसिया कैद में नहीं है, तो फिर भी वो गमों का शिकार है, वो मायूसियों का शिकार है, वो परेशानियों का शिकार है। उनको क्या कहते हैं? फिलिपियों 4 बाब की 4 की 11 आयत में कहते हैं हर वक्त खुश रहो। आप में से कितने हैं जो हर वक्त खुश रहते हैं? आमीन। ताली बजाएं के लिए। हमें हर किस्म के हालात में खुश रहना है, और वही खुश रह सकते हैं जिनको खुदा की मोहब्बत का यकीन है। प्रेज़ गॉड। वो कहता है ये नहीं कि मैं मुताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी रहूँ। आपकी जो भी हालत है, आपके पास एसी नहीं है, पंखे के नीचे सोते हैं, फिर भी खुश है। हालेलुया। बुड़बड़ाए नहीं कि उसके पास एसी है, मेरे पास एसी नहीं है। आपके पास साइकिल है, आप साइकिल पर खुश रहें। आपके पास बाइक है, बाइक पर खुश रहें। आपके पास गाड़ी है, उस पर खुश रहें। तो आज के हालात ऐसे जा रहे हैं, जो साइकिल वाला है वो बाइक को देखता है, बाइक वाला गाड़ी वाले को देखता है,
गाड़ी वाला आगे बड़ी गाड़ी वाले को देता है, बड़ी गाड़ी वाला आगे हेलीकॉप्टर वाले को देता है, हेलीकॉप्टर वाला आगे जहाज वाले को देखता है, और इस तरह से ना खुश होकर जिंदगियां बसर करते हैं। आप जिस भी हालत में हैं, हमें उसी हालत में खुश रहना चाहिए। बल्कि पौलुस रसूल तस्सलुनीकियों की कलीसिया को खत लिखते हुए कहते हैं, पहला तस्सलुनीकियों 5 बाब की 18 आयत में, हर बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। एक बंदा था, उसका एक बाजू नहीं था, वो उस पर ना खुश था, उस पर वो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करता था। आगे जाकर देखा, एक बंदे के दोनों बाजू में नहीं थे, दोनों टांगों में नहीं थे, वो फिर भी खुश था। कहता हो इसको देखो, तो मेरा एक बाजू नहीं है, मैं ना खुश हूं, तो इसकी ना दोनों बाजू है ना दोनों टांगे हैं, ये फिर भी खुश है। इस तरह हमें खुश रहना चाहिए। और जो हमारी शुक्रगुजारी है, जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, इस तरह से हम दुश्मन पर फतह पाते हैं। आपको अगर दुश्मन अबलीस पर फतह पानी है, तो आप अपनी कोशिशों से नहीं, बल्कि वो फतह आपको ईमान से मिलेगी। फतह हमारी कोशिश करने से नहीं मिलेगी, हम जो मर्जी कर लें हमें फतह नहीं मिलेगी जब तक हम ईमान नहीं रखेंगे। फतह हमें कैसे मिलती है? ईमान से। आप पूछ सकते हैं कि किस बात पर ईमान रखना है, या किस बात से ईमान रखने से आपको फतह मिलेगी। बहुत से ईमानदार शैतान की मलामत के मुताबिक रहते हैं, जो उन्हें कहता रहता है तुम रोजे नहीं रखते, तुम दुआ नहीं करते, तुम गवाही नहीं देते, तुम बाइबल का मुताला नहीं करते, वगैरह वगैरह। वो बहुत सी मुर्दा सरगर्मियाँ हमारे काम पर सर अंजाम देते हुए मुसलसल अपने आप को मलामत करने वाली सोचों के हमें जुम्मे में लगा देता है, और हम इसी तरह से कहते रहते हैं, वो जिस तरह से मुझे दुआ करनी चाहिए मैं तुम्हें दुआ ही नहीं हुई, जिस तरह से मुझे कलाम पढ़ना चाहिए कलाम नहीं पढ़ा जाता। हम इन्हीं सोच